السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AP92 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعید سعیدی۔ پیش خدمت ہے پاکستان ینگ رائٹر کلب کی جانب بسم سے اللہ الرحمن منعقدہ الرحیم۔ تقریب کا دیکھتے ہیں آپ احوال سنتے کانوں کو اور الطاف بارکہ خلوص مقررین کا برا اظہار غبار اچھا خیال۔ برا برخلوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، حسب روایت اور حسب خدمت ایک اور ایونٹ میں لے کے آیا ہوں۔ اس وقت تھوڑا سا ایونٹ میرا ڈفرینٹ اسٹائل میں ہے اور مختلف انداز میں ہے، تو میں یہ بتاتا چلوں۔ تو آج کا یہ الحمدللہ ایونٹ بچوں کے ادب کے حوالے سے، بچوں کا ادب کیا ہے، اس کو کس طریقے سے روشناس کیا جائے، اس کو کس طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کو کس طریقے سے انداز سے اس کو کیا جائے کہ ماشاءاللہ بچوں کا ادب اور پھلے پھولے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، موجودہ دور سمجھے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے۔ اس انٹرنیٹ کے دور میں ہم بیٹھ کے کس طریقے سے بچوں کے ادب کو فروغ دیں اور مزید کام اچھے سے اچھا ہو بچوں کے ادب کے حوالے سے۔ تو آج کی تقریب ہماری شروع ہونا چاہ رہی ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب منظور صاحب کو، تو وہ آ کر تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئیں خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ آمنہ کا مقدر سوارا گیا، آمنہ کا مقدر سوارا گیا، گود میں چاند جن کی اتارا گیا، گود میں چاند جن کی اتارا گیا، حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے، پڑھتے رضوان صلی علی آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے۔ رکھنا انہیں چاہیے تھا کہ کم سے کم ایک مائک کا انتظام رکھتے تاکہ آواز دور تک پہنچ سکے۔ پچھلی سب تک تو پہنچ ہی گیا۔ فیس بک پر بچوں کے ایک ادیب سے بات ہو رہی تھی میری، اس نے اپنی ایک کہانی مجھے ٹیگ کی بھیجی۔ بنگلہ دیش کا مشہور ادیب، اس نے کہانی پیش کی، صرف 2.5 صفحے کی کہانی ہوگی، یا اگر ہم ٹوٹ بٹوٹ یا اس ٹائپ کے رسالے میں لگائیں تو وہ 5 پیج کی۔ اس سے میں نے سوال کیا کہ بھائی اس کے آپ کو کتنے پیسے ملے ہوں گے؟ اس نے کہا کہ آپ کو خبر نہیں ہے کہ یہ بچوں کا ادب ہے، بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، اور ہمارے یہاں جب بچوں کے لیے کوئی رائٹر لکھتا ہے تو اس کو 3 جانب سے اعزازیہ دیا جاتا ہے۔ پہلا اعزازیہ دیتا ہے وہ پرچہ جس میں چھپا، دوسرا اعزازیہ دیتا ہے بنگلہ اکیڈمی، اور تیسرا اعزازیہ حکومت ثقافت وزارت ثقافت کی طرف سے۔ تو ان کے یہاں اس ملک میں جہاں 1947 کے پہلے مسلمان ادیب ہی نہیں تھے سوائے 2 ادیب کے، ایک قاضی نذیر اسلام اور دوسرے کبھی جسیم الدین، تیسرا کوئی نام ہی نہیں تھا۔ جتنے بھی نام تھے سب وہ اہل ہنود تھے، مسلمان کوئی رائٹ ہی نہیں تھا۔ اور آج اسی جگہ ہزاروں کی تعداد میں ادیب پائے جا رہے ہیں، اس لیے ادیب سامنے آ رہے ہیں نئے نئے پوائنٹ لکھ کے کہ ان کے پیچھے ایک
बड़ी लॉबी काम कर रही है, उनके पीछे उनको मदद दी जा रही है। और हमारे यहाँ एक तो बच्चों के अदब के लिए 2 पैसे देना भी लोगों को गवारा नहीं, कि अगर फ्री में दिख रहा है तो बहुत अच्छा है। और यही चीज़ जो है अदब अतफाल का सबसे बड़ा दुश्मन जो बन रहा है वो ये कि बच्चों के अदीबों को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, और जिनको पैसे दिए नहीं जाएंगे तो वो दिल से नहीं लिखेंगे, और जब दिल से नहीं लिखेंगे तो वो कोई इतना बड़ा शाहकार तख्लीक हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कम से कम उनमें से कुछ को तो ये सोचना चाहिए कि मुस्तक़बिल के मेमारों की तामीर के लिए हम कैसा अदब पेश करें, और उसी हिसाब से उन्हें भी चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को जिस तरह से दूसरे ममालिक में होता है कि बच्चों के लिए अदब तकलीफ जो कर रहे हैं उनको स्टेपन दिया जाता है, उनको इजाज़िया दिया जाता है, उनको ऊपर से इनामात दिए जाते हैं। तो कम से कम अगर थोड़े बहुत भी मुख्तलिफ कंपनियाँ, हुकूमती सतह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सतह पर भी अगर कुछ ना कुछ, जिस तरह से सब आदमी जानते हैं कि नौनिहाल हमदर्द कंपनी में जाइए, किसी भी काम के लिए एक छोटा सा इश्तिहार आपको फ़ौरन मिल जाया करता था, लेकिन इसके अलावा बाकी किसी भी बड़ी कंपनी को ये तौफीक नहीं होती है कि वो उन इश्तिहारात को इश्तिहार दे के कम से कम मदद करे। और ख़ास करके बच्चों के अदब के लिए तो ये इसलिए ज़्यादा है कि जो आज हम पढ़ाएंगे बच्चों को, वही तालीम उनके मुस्तक़बिल में काम करेगी। तो हमने सब कुछ याद रखा और बच्चों के अदब की तरफ थोड़ी सी तवज्जो भी नहीं थी, और जो कुछ बच गया था, प्रिंट मीडिया को जो भी मार खा रहा है, हम सभी किसी न किसी तरह से मीडिया से मुंसलिक हैं, जैसे मैं भी एक डाइजेस्ट से मुंसलिक हूँ, सभी किसी न किसी तरह मुंसलिक हैं। और उन लोगों से पूछे कि इस वक्त प्रिंट मीडिया का क्या हाल है, कि हम लोग दफ्तर जाते हैं ये सोचते हुए कहीं ऐसा ना हो जैसे एक्सप्रेस में लोग पहुँचे तो पता चला कि मैगजीन बंद कर दिया गया, 27 आदमी जाइएगा, जंग में मैगजीन बंद कर दिया गया, कहा गया जाइएगा, तो वही हालत हम लोगों के डाइजेस्ट में भी ना हो। तो इस वक्त तो यह हाल चल रहा है प्रिंट मीडिया का, कम से कम उतना ना सही, उनको तो कुछ इश्तिहार भी मिल जाता है, बच्चों के अदब के लिए कोई बड़ी कंपनियां इश्तिहार क्यों नहीं दे रही है, इसके लिए आवाज़ उठाएं ताकि इनको जो है कुछ तो सहारा मिले, और अच्छा अदब, ख़ास करके बच्चों का अदब जब तख्लीक होगा तो आने वाली नस्ल भी हमारी उतने ही आगा होगी। बस ये भी हमारे सब बचपन ही के दोस्त हैं, इब्न शहबाज साहब हैं। तो मैं अल्ताफ़ भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने वो जो एक कहते हैं ना जंजीर बनी हुई थी वो टूट गई थी, वो कड़ियाँ सब मिल गई, अब दोबारा से एक जंजीर मुकम्मल हो गई है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, क्योंकि ये अल्ताफ़ भाई का प्लेटफॉर्म एक ऐसा था जब तो हम बच्चे थे, अब माशाल्लाह जो मैंने नाम गिनवाए हैं वो बड़े नामवर नाम हैं, कोई छोटे मोटे नाम नहीं हैं। तो बच्चों के हवाले से ऐसी तकरीबात होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का अदब, जैसा कि बिलग्रामी साहब ने कहा कि दम तोड़ गया है, इन्होंने सही कहा है। अब आ गया है मोबाइल का दौर आ गया है, तो माँ बाप भी अपने बच्चों को जो है रिसाले नहीं लेके देते हैं, वो एक मोबाइल पकड़वा देते हैं। तो मेन वजह ये भी है बच्चों की जो अदब से जो दूरी है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो बच्चों को राग़िब करें, फिर से वो प्रिंट मीडिया जो है दोबारा से ज़िंदा हो जाए, बहाल हो जाए। मैं एक बार फिर अल्ताफ़ भाई को मुबारकबाद दूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ज़्यादा गुफ्तगू ना करें। थोड़ा हो गया हूँ, 3 साल बाकी रह गए हैं रिटायरमेंट के मेरे। तो अब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी जब मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ ना, खुदा की कसम नहीं लिखा जाता। और आज भी हमने अगर बच्चों को कहानी सुनानी शुरू कर दी, आज वो नानियाँ भी बैठी हुई हैं, दादी भी बैठी हुई हैं, आपके उसमें अखबार में एक्सप्रेस में पुरानी जो कहानी आती थी एक ज़माने में कि एक ज़माना था, एक जंगल था और एक बादशाह रहता था और यह था, उस कहानी में मज़ीद कुछ और था। आज का बच्चा जो है वो रेडीमेड माँग का रेडीमेड बच्चा हो गया है, फार्मी माँग का फार्मी बच्चा हो गया है, साइंसी बच्चा हो गया है। हम जब पैदा होने वाले थे तो दाई ने बताया था कि तुम्हारे यहाँ लड़का होने वाला है, और आज की माएँ अल्ट्रासाउंड से देखती हैं कि लड़का है कि लड़की। तो आज का बच्चा, आज की माएँ हैं तो पुरानी दाई की पैदावार की, मगर ये है कि वो बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या वो देंगी इसमें। अब क्योंकि बच्चे की डिमांड है कि भाई मुझे साइंस और फिक्शन ये चाहिए वो चाहिए, अब इसके लिए माँओं को भी पढ़ना पड़ेगा। माएँ पढ़ें और पढ़ के फिर बच्चों को पढ़ाएं, फिर बच्चे के लिए फिर तो उसकी तरबियत करें कि इस दौर में क्या चाहिए, बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के आला मकाम पे पहुँचे, और इसके लिए मगर उसकी तरबियत भी ज़रूरी है। सिर्फ हमारे यहाँ तालीम को रोज़ी रोज़गार का ज़रिया बना दिया गया है, खुदा की कसम अदब नहीं है बच्चों में। बच्चे बेअदब हो गए, ये सब मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, मेरे जूनियर बैठे हुए हैं, बहुत ही तरीके से बैठे हुए हैं। अगर आज यही किसी ऐसे स्कूल का या कैसा प्रोग्राम होता तो कोई इतनी तहजीब नज़र नहीं आती कि जितनी इन लोगों में हम लोग नज़र आ रही है।
कहने का मकसद ये है कि आज के बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज के बच्चों को उस पर लाने के लिए, अदब सिखाने के लिए माँओं को बाअदब होना पड़ेगा। माएँ दौर कदीम की पैदाइश है, आज से 50 साल पहले की हैं, तो उनको आज के बच्चे को इस जगह पर लाने के लिए, साइंस से मुकाबला करने के लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए। मैं इनके सवालनामा मरतब करते थे जंग में, तो मैं उसके बच्चों के सवाल उनको जवाब दिया करता था। ये मेरे लिए एजाज़ है। और इसके बाद ये मेरे मैगज़ीन में मेरे साथ रहे, यकीनन मैं एडिटोरियल उसको देखता था, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने मेरे साथ काफ़ी ताउन किया और मुझे अपने छोटे भाइयों बच्चों की तरह इन्होंने काफ़ी मुझे आगे मदद बढ़ाया। मैं अल्ताफ़ पारेख को इस जद्दोजहद पे, इस काविश पे बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोगों को भी राय तस्लीम पेश करता हूँ कि आप अपना वक्त निकाल के यहाँ आए। शुक्रिया। और रात की स्याही है, वाए ज़माने में शम्सुद्दुहा बनकर, हर एक ज़र्रा चमक उठा महताब ज़िया बनकर। तमाम शुरका को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटा सा कलमकार हूँ और बोलने का मेरा इतना तजर्बा नहीं है, और अल्ताफ़ कादरी पारिक की मोहब्बत है कि उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया। ये बच्चों के अदब से मुताल्लिक एक तहरीक है, यहाँ छोटा सा प्रोग्राम है। तो बच्चों का अदब जब भी तरवीज पा सकता है कि तमाम अदीब यकजा होकर उसके लिए जद्दोजहद करें। अल्ताफ़ कादरी पारिक अगर तकरीब करते हैं उसमें भी सबको जाना चाहिए, न्याज़ प्रोग्राम करते हैं उसमें भी जाना चाहिए। ये सब अदब के लिए काविश कर रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अब अल्ताफ़ भाई ने यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि मुख्तसर अपने ख़यालात का इज़हार करें और अचानक यहाँ बुलाया, तो बंदा क्या इज़हार करे। मैं अल्ताफ़ भाई का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये तकरीब ऑर्गेनाइज़ करी, और इस शेर के साथ इख्तिताम करता हूँ कि अजब दस्तूर ज़ुबाबंदी है महफिल में तेरी, यहाँ तो बोलने को तरसती है ज़ुबां मेरी। जाने के लिए उन्होंने ये तकरीबात करनी शुरू की। मुझे लगता है कि एक बार और तकरीब की थी इन्होंने, शायद आर्ट्स काउंसिल के बराबर में कोई हॉल था, वहाँ पर की थी। तो वहाँ पर आसिफ मलिक तबस्सुम आए थे और फरजाना रूही आई थी, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद से फिर अल्ताफ़ जो है राइटर्स मेमन में चले गए, फिर मेमन बिरादरी के प्रोग्राम करते रहे, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम किए। लेकिन ये फिर दोबारा से यंग राइटर्स क्लब में आए और इसको उरूज के लिए इन्होंने अपना कदम बढ़ाया है। भाई अब देखिए कि हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि ये प्रोग्राम चलता रहे, बस रुके नहीं। जब ये कारवां शुरू किया है तो चलते ही रहे। माशाल्लाह से इसमें से कहते हैं कि समंदर में से मछलियाँ कूद रही होती हैं ना पानी के अंदर, इसी तरह से तंजीमें भी और बाहर निकल रही हैं। अल्लाह करे ये तमाम तंजीमें, कोई सी भी तंजीम हो, सब अच्छा कदम लेकर के बढ़े और बच्चों के लिए काम करें, बच्चों को लेकर आएँ, ताकि बच्चे देखें कि हाँ तंजीमें क्या कर रही हैं, हमारे लिए क्या काम कर सकती हैं। हमें मजमून निगारी है या खुद कहानी नवेसी है और दीगर चीज़ें हैं, उसमें उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनमें प्रोग्राम किए जाएँ, बच्चों के लिए अवार्ड दिए जाएँ, सालाना हो या माहाना मजमून नवेसी के मुकाबले। ऐसे प्रोग्राम करते रहने चाहिए। तमाम तंजीमों से मुकाबला नहीं है, बच्चों के लिए सिर्फ काम करें, ये नहीं कि हम सो जाएँ। थैंक यू। अली हसन बैठे हूँ तो फिर अल्फाज तो अटक ही जाते हैं, तो मैं तो वैसे ही अटकता रहता हूँ। तो मसला अभी जो चल रहा है अदब के हवाले से जो बातचीत चल रही है, तो मसला सिर्फ लिखना नहीं है, मसला लिखने के बाद उसको पढ़ाने का भी। हमारे पास लिखने वाले हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि मतलब जो है कि सब अदब इत्फाल जो है कि तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। और वो पता नहीं किसने कहा कि ये सदी किताबों की आखिरी सदी है। तो खैर किताबों की आखिरी सदी तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये हो भी जाए अगर रीडर ख़त्म हो गया। हमने हमेशा अभी भी जितने मेरे साथियों ने जो है कि बात की, उन सब ने जो है कि अदब पे बात की कि लिखने वाला होना चाहिए। ये अल्ताफ़ भाई ने बोला कि मैं नए राइटर पैदा करना चाह रहा हूँ, तो मसला ये है कि रसद तो है, तलब नहीं है। तलब कैसे पैदा की जाए? तो तलब पैदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मतलब जो है कि राइटर क्लब भी हमने बना लिए, अभी 2-4 और भी राइटर क्लब बन रहे हैं। रीडर क्लब कब बनेगा? रीडर क्लब होगा क्योंकि देखिए दो चीज़ें आपस में मिलती है ना तो कंप्लीट होती है, यानी लिखने वाले के साथ पढ़ने वाला ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और हयात हैं। इनकी इस कोशिश जो इन सब को जो एक दफ़ा के एक अरसे तक तमाम लोग, तमाम साथी अलग अलग हो गए, बिखर गए, तमाम मोती बिखर गए, तो अल्ताफ़ कादरी पारिक साहब ने इन सब को यकजा करने के लिए इस प्रोग्राम का जो एहतमाम किया है। इस बात के लिए हम अल्ताफ़ साहब को एक मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम साथियों की तरफ से इनको इस मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस एक इब्तिदा ये कर दी कि जो कड़ी टूटी हुई थी, जो जंजीर टूटी हुई थी, उसको दोबारा जोड़ने का एक जिम्मेदारी ले ली। एक सिलसिला है, एक बात है जो लिखने के लिखाने के लिए जो उस वक़्त हुआ करता था कि शौक़ जो आज के दौर में दिखाई नहीं देता। इसलिए दिखाई नहीं देता कि जब हमारा दौर था, जब हमारे बचपन का दौर था, उस वक़्त हमारे घरों में एक मैगज़ीन आया करता था, कोई भी किसी किस्म का भी जो बच्चों का मैगज़ीन होता था। तो उस वक़्त हमारे वालिदैन जो दूसरे राइटर्स थे उनको शौक़ होने के लिए एक छोटी छोटी किताबें ही ला के दे दिया करती थी कि इनका रुझान हो अदब की तरफ,
اور ادیب بنے یا نہ بنے، لیکن ادب ان کے اندر ضرور آنا چاہیے. اس ادب کو ایک بچے کو باادب بنانے کے لیے، ایک تعلیمی رجحان پیدا کرنے کے لیے چھوٹی کہانیاں، بڑے میگزین، چھوٹے میگزین سب مہیا ہوتے تھے. لیکن آج کا دور لوگوں کا رجحان کیوں اس طرف نہیں ہے، صرف موبائل کا دور ہو گیا. میڈیا کو بہت زیادہ پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے ہمارے سامنے آ گیا ہے. مائیں جو ہے پہلے بچے شور کرتے تھے تو کہتے تھے رسالہ لے کے بیٹھ جاؤ، اب بچے شور کرتے ہیں تو مائیں موبائل دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اور اس کے بعد گھر میں خاموشی چھا جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں تربیت کرنی ہے، ماؤں کی تربیت کرنی ہے کہ اگر بہترین مائیں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا ادب بھی ویسے ہی پروان چڑھے گا اور نسل بھی پروان چڑھے گا. اصل مقصد یہ ہے، ادب کا مقصد یہ ہوتا ہے معاشرے کی فلاح و بہبود کرنا. ہر رائٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے مورلی اپنے معاشرے کو جو ہے کوئی نہ کوئی پیغام دینا چاہتا ہے. آج کے ادیب کے پاس پیغام نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو آگے لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ادب اسی وقت فروغ پا سکتا ہے کہ آپ اپنے مطالعے کی عادت کو آگے بڑھائیں. مطالعہ، ہر ملک کی کتابوں کا مطالعہ کریں. اس سلسلے میں بہت سے کام کیے گئے ہیں ادب کے لیے بھی، اور الطاف بھائی نے، علی حسن ساجد نے، اس سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، کیا نام ہے ہمارے محبوب مخمور صاحب نے، اور بہت سارے لوگ جس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے. لیکن اصل کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آج کے جو اس منچ میں ہمیں بچوں کی ضرورت ہے جن کی ہمیں اویئرنیس دینی تھی. آج کے اس پروگرام میں کچھ اسکولوں کو دعوت دی جاتی ہے، ان کے بچوں کو دعوت دی جاتی کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کے ادیب ہیں، یہ ان کے لکھنے والے ہیں، یہ ان کی تربیت کرنے والے ہیں. آج ہم سب ایک دوسرے سے واقف ہیں اور ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے کے کاموں سے. ہمیں جن کو بتانا تھا وہ یہاں موجود نہیں ہے. تو میں الطاف بھائی سے اور اپنے تمام لوگوں سے جو کہ ادب کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں، تو یقین جب بھی وہ یہ کام کریں تو اسکولوں کے بچوں کو ضرور اس میں انوائٹ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا ادیب ان کے ساتھ ہے اور ان کی تربیت کرنے والے لوگ ان کی تربیت کے لیے کتنے کٹھن مراحل سے گزر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ میری سجیشن کو خاطر خواہ کریں گے. اور الطاف بھائی بہت مبارکباد ہے، ابن عاص بہت مبارکباد ہے اور کے قابل ہیں. اس کے علاوہ محبوب مخمور جو آپ بیتیاں چھاپ رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا کام ہے. جنگل منگل والے ہمارے علی حسن بھائی، ان کو بھی بہت مبارکباد ہے کہ وہ اپنی سطح پہ آ کے بہت کچھ کرتے رہے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. جعفر خونپوریا صاحب ابھی بھی اپنے میگزینس نکال رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس دور میں، جب کہ ایک نفسہ نفسی کا دور ہے، اس نفسہ نفسی کے دور میں بھی وہ ادب کے لیے، ادب کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. مجھے آج اب بات ہے بچوں کے ادیب، بچوں کا ادب، اور وہی گھسا پیٹا موضوع کہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لوگ لکھتے نہیں ہیں، پرنٹ میڈیا یہ ہے، الیکٹرانک میڈیا وہ. سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون؟ بچے پڑھنے والے نہیں ہیں، بچوں کو موبائل دے دیا جاتا ہے. کون دیتا ہے؟ اب اپنے گھروں میں دیکھیں. آپ نے اپنے گھر سے کتنے بچوں کے ادیب نکالے؟ آپ نے اپنے گھر میں کتنے بچے پڑھنے والے پیدا کیے؟ پھر دوسروں کی طرف دیکھیں. ہم جب چھوٹے تھے گھر میں اخبار تو آتے ہی آتا تھا، لیکن میرے ابا اہتمام کر کے ایک رسالہ بچوں کی دنیا لگوا دیا تھا کہ یہ پڑھو تم لوگ. اسکول سے آئے، اسکول کا کام وام کیا، آج اس میں سے کون سی کہانی پڑھی، فلاں کہانی پڑھی، ذرا سناؤ تو کیا. زبانی یہ نہیں کہ دیکھ کے سناؤ تو کیا ہے، کہ پتہ لگے کہ جو پڑھا ہے اندر گیا کہ نہیں گیا، دماغ میں گھسا کہ نہیں گھسا، کس حد تک سمجھا، کس حد تک نہیں سمجھا. پاس ہو رہی ہیں، فرسٹ آئیں گی، آپ کو فلاں کہانی کی کتاب لا کے دوں گا. جس میں ٹاپ کریں گی، پتہ نہیں دوسری یا تیسری میں ٹاپ کیا. اس وقت ہندوستان سے رسالے آتے تھے، ہندوستان کا رسالہ کھلونا سالانہ خریدار بنا دیا. آج آپ میں سے کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں؟ یہ بہت آسان ہے. بچے یہ نہیں کرتے، چوسنی دے دی، موبائل دے دیا. اپنا جائزہ لیں، آپ کیا کریں؟ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، ان کو لکھنے کی عادت ڈالیں، ان میں دیکھیں ٹیلنٹ کیا ہے. ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ایک ہوتا ہے لکھنا. ہم نے MBBS کر لیا لیکن ہم نے اس کے ہال ٹاپ نہیں کی تو وہ بیکار ہے ڈاکٹری. اسی طرح آپ کو پریکٹیکل ہونا چاہیے. میں نے اپنی بچوں کی تربیت کی ہے ماشاءاللہ سے، ان کو اچھی باتیں بتائیں جیسے بڑی عورتیں بتاتی تھیں. کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ مدر کو یا میری ساس کو کہ آپ ان کو نہیں ڈانٹیں. جب بھی آپ دیکھیں بچوں کو ڈانٹیں، بچوں کو سکھائیں. ہر ماں کو یہ کہنا چاہیے. کبھی یہ نہیں ہو کہ ہاں آپ نے ہمارے بچوں کو کیوں ڈانٹا، اور آپ تو یہ اس طرح کی باتوں سے بچے خراب ہوتے ہیں. میرا جو تجربہ یہی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو آگے بڑھایا، ماشاءاللہ میرے 5 بچے ہیں، میں نے اپنی جاب بھی کی، میں نے ان کو پڑھایا لکھایا. آج وہ باہر کے ملکوں میں ہیں، کام کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. تمیز سکھائی، تہذیب سکھائی، کس طرح بڑوں کے سامنے جا کے سر جھکانا چاہیے جب آپ ان کو آداب کہیں تاکہ وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں. تو مطلب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ابھی بھی ہم سکھانا پڑیں گی ہمیں، چاہے ہم کتنے ہی ادب پڑھ لیں، کتنے ہی ہم کتابیں پڑھی تھوڑی دیر بعد رکھ دیں، آپ بچے بھول گئے یا میں بھی بھول جاؤں گی. میں اتنی بڑی عورت ہوں، میں بھی بھول جاؤں گی. لیکن جو پریکٹیکل ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ تربیت کرتے رہیں. ان کی ہم لوگوں کو تربیت کی ضرورت ہے. آج کل کی مائیں تربیت نہیں کر رہی ہیں، سوری ٹو سے، اور وہ اپنے کاموں میں لگی ہیں، گھومنے پھرنے میں لگی ہیں. میں نے اپنی زندگی کا سب کچھ کام کر کے پھر میں باہر نکلی، قدم نکالا جب میرے بچے اس قابل ہو گئے کہ وہ ملک کے لیے بوجھ نہیں بنیں گے، اپنا کام خود کر لیں گے. تو تھوڑی سی یہی بات تھی. اور ابھی بھی میں خدمت خلق کر رہی ہوں اور سوشل کام کرتی ہوں، بچوں پہ زیادہ کام کر رہی ہوں اور عورتوں پہ اویئرنیس کے پروگرام کرتی ہوں. جو عورتیں مطلب ان پڑھ ہیں، جو بیچاری بالکل ہی وہ ہیں، ان کو لے کے آنا، ان کو
जब 20 होटल है, मैंने 2-3 प्रोग्राम रखे थे औरतों के लिए कि आप अवेयरनेस दें उनको, कि वो उनको अवेयरनेस देंगे तो वो अपने बच्चों को पालेंगी सही। सबसे बड़ी तो मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आप सबके दरमियान मौजूद हूँ और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी ज़िंदगी और सेहत दे। आजकल के दौर में तो इस तरह अपने फ्रेंड्स को गेट टुगेदर करने को या रीयूनियन कहते हैं कि पुराने दोस्त मिलके और वो आए। और आप लोग जो अदब की बात कर रहे हैं, नो डाउट अदब हमारे यहाँ बहुत पीछे रह गया है। हम इस जनरेशन की भी बात कर लेते हैं, मोबाइल का दौर है, मोबाइल में बच्चे इस तरह है, पढ़ने का रुझान ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह क्या है कि हम हर तरह की बात ज़रूर करते हैं। मैं मोबाइल को बुरा नहीं कहती क्योंकि वो भी एक टेक्नोलॉजी और आजकल की ज़रूरत है, लेकिन हमारे स्कूलों में अदब कहीं खो गया है। आप फिजिक्स पढ़वाएं, मैथ पढ़वाएं, इंग्लिश लिटरेचर पे इतनी तवज्जो दी जाती है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर से ना हमारे यहाँ वो टीचर्स हैं और ना उस तरह वो पढ़ाया जाता है। बस उर्दू में बच्चा पास हो गया, ठीक है। पेरेंट्स भी बीइंग मेरी बच्ची 4 साल की, मैं भी जाती हूँ, तो मुझे उर्दू की इतनी इंटरेस्ट ही नहीं होता कि हाँ ठीक है बच्चा पासिंग मार्क्स से पास हो गया है, ठीक है, लेकिन हाँ इंग्लिश में, मैथ्स में उसके क्या मार्क्स हैं। ये हम लोग की अपनी कोताही है कि हम बच्चों को अपने, सबसे बड़ी बात हमारी मादरी ज़बान उर्दू है, हमें उसको बहुत फ़रोग देना चाहिए। हर जगह, हर मामले में अपनी ही ज़बान को फ़रोग देना चाहिए। हम क्यों दूसरों की तकलीद करें कि हम इंग्लिश बोलें, फ्रेंच बोलें, क्यों बोलें? हमारी इतनी खूबसूरत ज़बान है और हमारा इतना खूबसूरत कल्चर है जिसको फ़रोग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कहीं पीछे होता जा रहा है। करते हैं कि सिविल अवार्ड बच्चों के अदीबों को नहीं दिया जाता। बहुत माजरत के साथ अगर मैं ये कहूँ कि क्या हमारे बच्चों के अदीबों को सिविल अवार्ड का तरीक़ाकार मालूम है, तो मेरा ख्याल नहीं मालूम होगा। और क्या किसी बच्चों के अदीब ने उसमें अप्लाई किया है? कभी नहीं किया होगा। सिर्फ यहाँ कह लेने से किसी बच्चों के अदीब को अवार्ड नहीं मिलेगा, सिविल अवार्ड नहीं मिलेगा। उसका एक तरीक़ेकार होता है, उसका एक फॉर्म होता है, फिर वो जाता है, फिर वो टेस्ट होता है, फिर यहाँ हमारे सेक्रेटरी जो कल्चर एंड टूरिज्म है उसके पास जाता है, वहाँ से चीफ सेक्रेटरी के पास जाता है, वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ सिंध जाता है, वहाँ कैबिनेट डिवीजन में डिस्कस होता है। लेकिन हमारे किसी बच्चों के अदीबों को इस बात का मालूम ही नहीं, और ये भी नहीं मालूम कि बच्चों को कई अदीबों को ये अवार्ड मिल चुका है। इशाद इल्म में नहीं है बहुत सारे दोस्तों को। कमाल अब्बास साहब तमगा इम्तियाज़ ले चुके हैं, सूफी तबस्सुम साहब को मिल चुका है, इब्न इंशा ने बच्चों के लिए जो काम किया उनको मिल चुका है, उससे बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। एक मिसाल यहाँ दूँ, अभी बल्दिया उस्मा कराची ने तमगा कराची का ऐलान किया है, उसमें तमगा कराची दिया जाएगा, साथ में 10 लाख रुपये कैश है। 600 के करीब मेरे पास उनकी एंट्री आई है। दिलचस्प बात यह कि बच्चों के किसी अदीब की कोई एंट्री उसमें नहीं आई। जब ये तमगे दे दिए जाएंगे, ये रोने की बात है, जब तमगे दे दिए जाएंगे तो हमारे बहुत सारे दोस्त कहेंगे KMC ने बड़ी ज़्यादती की, किसी बच्चों के अदीबों को कोई तमगा नहीं मिला। उसमें एंट्री किसने भेजी है, कोई बता सकेगा? कि 600 के करीब एंट्रीज आई हैं पूरी कराची से। उसमें अदीब हैं, शायर हैं, पेंटर हैं, नक़ाद हैं, कलमकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं। लेकिन ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि बच्चों के किसी अदीब की कोई एंट्री उसमें नहीं आई है। और बगैर एंट्री के हमारी कमेटी जो है ज़ाहिर फैसला नहीं करेगी, अवार्ड नहीं देगी। जब ये अवार्ड 14 अगस्त को तकसीम होंगे, दिए जाएंगे, तो फिर ये आएगा कि साहब बच्चों के किसी अदीब को कोई अवार्ड नहीं मिला, बड़ी ज़्यादती हुई है। लेकिन हाँ बताता हूँ। अब ये इनका सवाल है कि कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। 4 मरतबा रोज़नामा जंग, 4 मरतबा रोज़नामा डाउन, 4 मरतबा रोज़नामा अवामी पाकिस्तान और दीगर अखबारात में इश्तहार शाया हुए। उसी की बुनियाद पर 600 के करीब एंट्रीज आई हैं हमारे पास, खामोशी से नहीं आई, उसी बुनियाद पर आई। इसी तरह बल्दिया उस्मा कराची ने मुकाबले मजमून नवीसी का ऐलान किया था, उसके इश्तहारात भी इसी तरह आए थे। उसमें भी हमने पहला इनाम 10 लाख रुपए, दूसरा 5 लाख और तीसरा 3 लाख रुपए रखा हुआ है। मज़े की बात उसमें भी वही है कि बच्चों के किसी कलमकार ने कोई मजमून उसमें नहीं लिखा। हमारे पास कोई 350 के करीब मज़ामीन आए हैं पूरे पाकिस्तान से, लेकिन बच्चों के किसी अदीब का कोई मजमून उसमें शामिल नहीं है। जब ये अवार्ड तकसीम होंगे रबीउल अव्वल में या ये इनामात दिए जाएंगे, तो फिर ये आएगा कि बच्चों के किसी अदीब को क्यों नहीं दिया, बड़ी ज़्यादती हुई है। हम अपने साथ ज़्यादती खुद करते हैं। हम उस कतार में नहीं आते, उस लाइन में नहीं आते जो विंडो तक पहुँचाती है। और जब तक आप विंडो की लाइन में नहीं आएंगे, आप विंडो पे नहीं पहुँचेंगे, हजूम में रहेंगे। तो हमेशा जब भी कोई ऐसा मामला हो, आप विंडो तक पहुँचने के लिए आपको क्यू में आना पड़ेगा, लाइन में आना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने बात करनी है, मुझे बहुत सारी बातें यहाँ करनी थी, लेकिन ज़ाहिर के वक्त कम है। अल्ताफ़ कादरी पारक हमारा दोस्त है और हमें इनसे प्यार है। और 80 की दहाई में जो है वो 2 अल्ताफ़ जो है कराची में मशहूर हुए थे, एक अल्ताफ़ भाई और एक अल्ताफ़ पारक। और देखिए कि अल्ताफ़ पारक वैसा का वैसे ही है, दूसरे अल्ताफ़ जो है इस वक्त कराची में नहीं। तो ये दोस्तों की, ये इनसे दोस्तों की मोहब्बत है, हम इनके दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे और ये काम करते रहेंगे। दूसरी एक छोटी सी बात और कर दूँ आखिर में कि बल्दिया उस्मा कराची जो है उसके जो भी ताउन है वो हम करने को तैयार हैं, जो भी इदारा आए। लेकिन वो जो लोग हैं वो आगे बढ़ें, खुद ब खुद जाके कोई पेशकश नहीं करता है। अपना हक़ हासिल करना होता है, कोई देता नहीं है। अपना हक़ हासिल करना होता है, कोई देता नहीं है। यही वही ज़माना है। और मायूसी जो है वो तो मेरी नज़र में कुफ्र है। अगर इंटरनेट आ गया तो क्या हो गया, अगर सोशल मीडिया आ गया तो क्या हो गया, अगर ज़माना तब्दील हो रहा है, तग़य्युर आ रहा है तो क्या हुआ? आप भी तग़य्युर लाएँ ना अपने अंदर, आप भी उसका पीछा करें ना। जो ज़माना जिस रफ्तार से चल रहा है, जाएँ उसके साथ, मिलें उसके साथ। अगर ज़माने से हाथ नहीं मिलाएंगे तो खुद ब खुद पीछे रह जाएंगे। ऐसा जैसे आप ट्रेन से उतर गए, आप अगर ट्रेन के बाद जहाज़ आ गया था तो कोई जुल्म थोड़ी हुआ था, आपकी रफ्तार को उसने तेज़ किया था। एक ज़माने में ट्रेन भी नहीं थी, बस से सफ़र करते थे। एक ज़माने में बस भी नहीं थी, ऊँटों पे सफ़र होता था, घोड़ों पे सफ़र होता था। घोड़े के बाद अगर बस आ गई, कार आ गई तो क्या जुल्म हुआ? कोई जुल्म नहीं हुआ। लोगों ने कार में सफ़र शुरू किया, कार के बाद अगर ट्रेन आ गई तो ट्रेन में लोग बैठे, ट्रेन के बाद अब जहाज़ आ गया तो जहाज़ में लोग बैठ रहे हैं। सफ़र मुख्तसर हुआ। कभी आप महीनों में पहुँचा करते थे, सऊदी अरब आप 2 घंटे में पहुँचते हैं। तो अगर सोशल मीडिया आ गया है, इंटरनेट आ गया है, ये टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, तो साथ चले ना बच्चों के अदीब, उसके पीछे क्यों हटें उसे? मेरे समझ में ये बात नहीं आती कि लोग मायूसी की बातें क्यों करते हैं। क्यों मायूसी है? मेरी नज़र में तो कोई मायूसी नहीं है। और आखिरी बात यह कि मुकालमा होते रहना चाहिए, गुफ्तगू होती रहनी चाहिए। इससे दिलों की कदूरत ख़त्म होती है, मोहब्बतें बढ़ती हैं। फिज़िकल अगर नहीं मिलेंगे तो ये मोबाइल पे चैटिंग से बात नहीं आती है। एक आखिरी शेर है किसी का कि बड़ा अच्छा सा इसी पे है कि हिज्र दोनों को मार डालेगा,
हिज्र दोनों को मार डालेगा। आ यार कुछ देर मिलते हैं, शुक्रिया। एक माँ को वो तरबियत ही नहीं दी जो एक बच्चे को अदब का तरीक़ेकार सिखाएगी, क्योंकि उस माँ को माँ बाप तरबियत नहीं देते। दुनिया में माँ को रियासत तरबियत देती है माँ बाप बनके, लड़के को तो मर्द बनाने के लिए माँ बाप तरबियत देते हैं। तो हमने माँ को तो पैर की जूती समझ के पर्दे के पीछे डालकर चांद मरीज तक दुनिया पहुंच गई। हमने दीवार के पीछे उससे इंग्लिश में मून का पूछो तो बोलती बराबर में रहता है। तो जिस माँ को हमने तरबियत ही नहीं दी वो बच्चे यानी फर्ज कर रहे हैं, अदब हो गए, कलम नवीस हो गए, कलम से लिख रहे, कलम क्यों नहीं बना रहे? हम कुरान पाक पढ़ रहे, कागज क्यों नहीं बना रहे? कुरान को छापने वाली इंक क्यों नहीं बना रहे? कुरान को छापने वाली मशीन क्यों नहीं बना रहे हैं? कुरान के ट्रांसपोर्ट के लिए आप ट्रक क्यों नहीं बना रहे हो? इंजन क्यों नहीं बना रहे हो? मजहबी सामान, अयाशी का सामान, दिफाई सामान, जरूरत का सामान, मेडिकल का सामान और हमारे मजहबी सामान, ये सब तो हम दुनिया से खरीद रहे काफिरों से, उनको रोज जन्नत में भेज रहे हैं। हम जन्नत में जाएंगे। वतन को लूटने वालों के लिए राशि वल मुर्तशी कला उम्मा फिलना, रिश्वत लेने वाला जहन्नमी, तो देने वाला भी जहन्नमी। यहाँ पर लेने वाला जहन्नमी है, देने वाला एक उम्र कर ले हाजी है। इससे डरते हैं, दिल में बुगस है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सच सुनना नहीं चाहते, वतन की गुर्बत पे बात करना नहीं चाहते, और मैं से शुरू होते हैं, मैं पे खत्म होते हैं। फिर उन्होंने यजीद इनके खजाने ऊँटों पे चला करते थे, वो भी मेरे नफ्स एक पल खरीद सके। दौलतमंद मेरे पैर के जूते से बचा रहे, क्योंकि उसकी दौलत के होते हुए मेरे पाकिस्तान ने सुबह ज़ैनब की इज्जत को लुटने से नहीं बचाया। कुत्ते 3 तरह के होते हैं। कितने कुत्ते का नाम सुने? मैं भी उन कुत्तों में शामिल। एक ज़मीन के ऊपर सड़क पर आप जाए तो रोटी के निवाले को तरसता है, दूसरा होटल के बाहर गाड़ी को सूंघता है, और तीसरा मैडम के हाथ में महंगे पलंग पर महंगा बिस्कुट खाता है। तीनों कुत्ते हैं, कोई उस कुत्ते में टैलेंट नहीं है। पक्का मकान और बड़ी गाड़ी होने का मकसद ये नहीं है बहुत टैलेंटेड हूँ। अदाकारी, फनकारी, गुलकारी और मुंह की बकबक, ये दुनिया में एंटरटेनमेंट है। जब कौमें थक जाती है, हमारे यहाँ पर ठुमका लगाने पे अवार्ड देते हैं, हमारे यहाँ पे कुछ ना करने पे अवार्ड देते हैं, हमारे यहाँ पर गीबत, दिल में चुगलियाँ, फितना। यानी अपने बच्चों को तो मदद देके जाओगे जब दिल में फितना रखोगे। तुम्हारे बाप ने परवरिश भी अच्छी की, लेकिन तुम्हारे खून में अल्लाह ताला ने लानत रखी कि तुमसे किसी का अच्छा नहीं बोला जाता। मोती वाला जेल गया, 177 में जेल गया था, $300 में बाहर आया। पाकिस्तान बर्बाद हुआ मोती वाला। तो भुट्टो को फांसी हुई थी, मरियम नवाज जेल गई थी, जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे। तो अगर मोती वाला जेल से जरा सी तरबियत हासिल करके आया तो तुम कौन से खानदानी हो गए? हीरा मंडी नेटफ्लिक्स पे देखी किसी ने? है लाहौर में, वो कहती है नवाब जब आते थे बेटियां तो हम रख लेती थी, नवाब से जो बच्चे हराम के पैदा होते थे वो हम बेच दिया करते थे। तो लाहौर में था। तो पाकिस्तान को लूटा किन्होंने? मुसलमान ने तो नहीं लूटा। कोई तो ऐसा हराम खोर होगा ना अंदर से मेला, जिसके खून में पाकिस्तान को गरीब करने की, एक लोगों को दुख देने के में भी तो लोगों को खुशी होती है ना। है हम तो इधर हर आदमी नवाब की औलाद बने में, तो फिर लाहौर वाले नवाब तो नहीं थे। औरत को हुक्म नहीं देने, राइट नहीं देने, औरत को डिप्रेशन में रखना है। औरत ही मर्द को मर्द बनाती है, लेकिन औरत को औरत नहीं समझना है। 2-4 पैसे आ जाए तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना है, देखो हमने गाड़ी ले ली लूँगा। वो है मुल्क। भाई मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा एंकर हूँ, मैं अच्छा मोटिवेशन स्पीकर हूँ। अबे मोटिवेशन स्पीकर जब हम जिंदा हैं तो हमको कौन मोटिवेशन देगा? हमको तो पता है मुझे खाना खाना है, लेकिन मोटिवेशन स्पीकर खुद भिखारी है, पैसे लेके मोटिवेशन कर रहा है। तो वो क्या किसी को आने वाला रास्ता दिखाएगा? सबको कुछ चाहिए, बस हाथ फैला के खड़े में भिखारियों की तरह। लेकिन भिखारी की गरीब होना बुरी बात नहीं है, दुनिया में गरीबों की इज्जत है। गरीब मुआशरे को खुशहाल करता है। भिखारी की पहचान साफ सुथरे कपड़े में भी भिखारी मिलेगा। भिखारी वो होता है जिसके पास किसी को देने के लिए कुछ होता नहीं, सिर्फ बुराइयां करता है, तनकीद करता है, पीछे से बातें करता है, किसी चलते हुए को, अच्छे बढ़ते हुए को पीछे रोकता है, पीछे से चुगलियां करता है। ये भिखारी की डेफिनेशन है। भिखारी हाथ फैलाने वाले को नहीं कहते, हाथ फैलाने वाला तो जरूरतमंद भी हो सकता है। और मैं इसका नायब सदर था, और वो यंग राइटर्स क्लब आज कोई हम 35-40 साल बाद यहाँ दोबारा जमा हुए। और जो यंग राइटर्स थे वो अब वो यंग से मलंग हो गए, हम जैसे बहुत सारे मलंग बैठे हुए। लेकिन अल्ताफ़ कादरी पारिक से हमारी वाबस्तगी बहुत ही पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी। लोग तवज्जो से सुन नहीं रहे, इसलिए कहने का फ़ायदा कोई नहीं है, ज़रा खामोश है। क्लब हमारी से वाबस्तगी बहुत पुरानी है। यहाँ पर चंद नई ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं, वरना अक्सरियत जो हैं, जिसमें हमारे महबूब महमूद साहब, यहाँ पर मज़हर मुश्ताक हैं, आज़म अदीम साहब हैं, यास्मीन हफीज़ हैं, यहाँ पर सालिया सिद्दीकी हैं, हुमैरा अतर साहिबा हैं, रऊफ़ इस्लाम आराई हैं, इब्न शहबाज खान हैं, अली हसन साजिद हैं, जाफ़र पुरिया हैं, और गुलाम रज़ा जाफ़री और फैसल मलिक सलीम। ये सारा वो टोला है जो हमारा राइटर्स का टोला था, एक ग्रुप था जो उस दौर से आज तक एक लड़ी की तरह अब तक एक साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग। और ये अल्ताफ़ की मोहब्बत है, मैं अल्ताफ़ हुसैन गलती से कहने वाला था। अल्ताफ़ की मोहब्बत है कि इस मोहब्बत में सब लोग जुड़े हुए यहाँ पर वापस दोबारा से आ गए। और हमने इस यंग राइटर्स क्लब की तकरीबात एक मदरसे में किया करते थे, अल्ताफ़ कुछ याद होगा, और वो हमारा बिल्कुल इब्तदाई दौर था, अवाइल दौर था। और अब उस ज़मानों के बाद आज हम यहाँ होटल जबीज़ में बैठे हैं। होटल जबीज़ से हमारी और भी वाबस्तगी हैं, सबको याद हो गया, टोट फटोट की महफिल हुआ करती थी। महमूद शाम साहब के साय में यहाँ बहुत हर महीने की एक निश्चित हुआ करती थी, वहाँ बैठते थे। और आज इतने सालों के बाद आज अल्ताफ़ ने मौका दोबारा फराहम किया है कि हम यहाँ बैठ के गुफ्तगू करें। मैं किसी अदब पे कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा, सबने गुफ्तगू बहुत कर ली है, तरबियत पे गुफ्तगू हो गई है। मैं सिर्फ पुरानी यादों को लेकर कुछ बातें करना चाह रहा था, लेकिन इस वक्त बात मुख्तसर करनी है, इसलिए हम रात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग जो हैं इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कीजिए, और मुझ समय जो भी आगे आ रहे हैं मुख्तसर बात करके इस प्रोग्राम को इस तरह से लेके जाएँ। बहुत शुक्रिया। तो जो ज़हनी तौर पर बड़े हो जाते हैं वो वाकई हमारे माशरे के लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। तो आज बच्चों के अदब के हवाले से यहाँ काफ़ी गुफ्तगू हुई, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे बरसगीर में 20वीं सदी तक तो मेरा ख्याल है बच्चों के अदब के हवाले से कोई बात भी नहीं होती थी, कोई अहमियत भी नहीं थी, कोई तस्करा भी नहीं था। ये जब हम अंग्रेज़ आए हमारे मुल्क में तो
उस वक्त जो उन्होंने बच्चों के अदब की भी अहमियत बयान की और बच्चों के अदब के हवाले से काफ़ी उन्होंने किताबें भी लिखी हैं ऐसी, और उनके तराजिम भी जब यहाँ हुए और अल्लामा इकबाल ने भी बहुत सी ऐसी नज़में बच्चों की हैं वो अंग्रेज़ी अदब से ही मुस्तहार लिए हैं, उनके ही तराजिम किए हैं। तो अल्लामा इकबाल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों के अदब के हवाले से। वैसे तो अल्ताफ़ हुसैन हाजी का भी है, और मैं आपको शायद ये बताऊँगा आपको कि गालिब ने भी बच्चों के हवाले से एक मंजूम लिखा है, शायद कादिर नामा के नाम से। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन अफसोस तो ये है कि आज बच्चों की अहमियत अपनी जगह पर है, बच्चों के अदब की अहमियत भी अपनी जगह पर है, और मैं समझता हूँ कि वो माशरा तरक्की कर ही नहीं सकता जहाँ बच्चों की अहमियत और बच्चों के अदब को उजागर ना किया जाए। तो लेकिन आज का दौर जो है वो बजाय इसके कि हम किताबों का सहारा लें या हम ये बच्चों के अदब का आगाज़ कहाँ से हुआ, ये समझ लीजिए कि हमारी दादियाँ नानियाँ जो लोरियाँ दिया करती थी, ये उनका नुक्ता आगाज़ था बच्चों के अदब का, वहाँ से हमारा ये सब आगाज़ हुआ है। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो वक्त आया है कि जब हमें कुछ शिकायत पैदा हो गई है कि हमारे बच्चे बेतवज्जही करते हैं अदब के हवाले से भी,